Hello everyone, welcome to TAB. Today we have Dr. Parul Purohit Vats with us. She is a performing dance artist, choreographer, author, and a performing arts educator. So, welcome ma'am. Let's hear it out from you. Let's introduce yourself. Namaskar, Swati. Thank you so much for having me here. And I'm loving being here and talking to your viewers. You have already told that I'm a performing arts educator. My forte has been Kathak always. But then I went into academia and then I was working for schools and developing curriculum. Thereafter got a chance to be with the Sri Ram Bharati Kala Kendra as a principal, and now I am Dean of School of Performing Arts at the World University of Design. And yes, I am an editor and an author. So yeah, a lot of hats to wear, but in a nutshell, I'm a performing arts educator. Okay, that's very nice. That's very nice. So, because like you have told a lot of things about yourself, and that's so nice actually to know. If I ask you if you have to choose one amongst all of this, like who and what Parul does, then what will you choose? I would say that I'm a student of performing arts still. So, and why do I say that? It is not only with a lot of humbleness, but when you are learning one form, just I started with Kathak. So when you are learning one form, you realize that chalo, we have reached one place now and we have achieved something. But when you venture into the area of performing arts, then you realize the kind of skills that you need to learn and the allied art forms and the education system into it. So there is still so much to do that I would rather, if next time somebody calls me, I'll ask them to introduce me as a student of performing arts. That's very nice. That's a very interesting answer, I would say. Okay, so moving on, Parul ma'am, just tell us a little bit about yourself. Like, who is Parul without performing arts, without dance? Yes, this is a very important question, and I think this is a question that has helped me shape my life because when I was much younger, I used to listen to people and they used to say dance is me and dance is my life and I am dance and stuff like that, and I was very clear from the beginning that dance is a part of me. Dance is something that not defines Parul. So yes, Parul is a traveler. Parul is I would say a free-spirited bird who would want to venture into anything and everything possible. So tomorrow if an opportunity comes from corporates, I'll walk into that, and if teaching calls not only for performing arts but for something else, I would probably walk into that. So Parul is somebody, I would say in one word, a learnivore. So I thrive on the fact that there's so much to learn and then to apply. It is not just learning and just keeping it, but I like to immediately start applying it somewhere in whatever way possible. And yes, I'm a voracious reader, a traveler, and all my friends and all my relatives and everybody will disagree to this, but yes, I'm an introvert. So You are? yes, Seriously? I'm an introvert, and so yes, it is this is what Parul is, and yeah. Oh, that's new. तो जब मेरी आपसे बात हुई थी मुझे लगा नहीं था कि आप इंट्रोवर्ट हो. आई गेस वैसे काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ है. मतलब वो देख कर लगता है दे आर वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड ऑल, बट समवेयर डीप डाउन दे नो कि हाँ ठीक है, एक टाइम के बाद दे जस्ट वांट टू लाइक just shut it down and just relax with themselves. To put it simply, I'm very friendly with people. I'm very cordial. I'm very respectful. I listen a lot, and I like to kind of mingle around. So what happens is people take it as extrovert, but I do not share what I am. I do not kind of easily become friends. I do not trust people, and I like to be by myself. So yeah. Nice. So moving on, just tell us a little about your journey as a performing artist. कथक डांसर आप थे, आप हैं, और काफ़ी टाइम आपने परफॉर्म किया है. हाउ वाज इट, एंड एज अ परफॉर्मिंग आर्ट्स एजुकेटर? तो स्वाति, मेरी जो जर्नी है वो जोधपुर से शुरू हुई. आई वॉज बॉर्न ब्रॉट अप देयर, एंड मेरे जो परदादा जी थे वो श्री राजा राम जी पुरोहित, वो राजघराने में सिंगर थे.
तो उनके बाद में हमारी फैमिली में किसी ने म्यूज़िक डांस को प्रोफेशनली नहीं लिया था. But if you look at my family, my tayajis and my father and my buas and everybody has a strong sense of music, and music has been a part of our lives, and all my cousins and everybody. So जब मैंने 10th किया, उससे पहले, indeed, let's begin from the beginning. When I was very very young, I used to be called for different performances. मैं सोफिया में थी पहले, सेंट पैट्रिक्स जोधपुर एंड देन सोफिया अजमेर. तो बहुत परफॉर्मेंसेस के लिए बुलाया जाता था. वहाँ पे किसी ने मुझे देखकर मेरे फादर को गाइड किया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो सीखे और इसको प्रोफेशन बनाए, तो उसे आप कोई क्लासिकल फॉर्म सिखाइए. सो तब से मेरी जर्नी शुरू हुई. मेरे पहले गुरु जो हैं पंडित खेमचंद प्रकाश, स्वर्गीय पंडित खेमचंद प्रकाश, वो घर आते थे. ही यूज्ड टू टीच मी एट होम. जयपुर घराना से शुरुआत हुई. एट द एज ऑफ 6 आई स्टार्टेड एंड आई केप्ट लर्निंग फ्रॉम हिम टिल द एज ऑफ 16. 10th में जब आई, देन देयर वाज अ डिसिसिव टाइम कि क्या करना है. एंड आई टोल्ड माई फादर दैट आई वॉन्ट टू टेक अप डांस. एंड आई वॉज अ good student. I had excelled in science, math, English. Everybody thought I'll go for, science. But that is the time when I requested my father. He said, please go ahead, do dance. लेकिन आपको नृत्यग्राम जाना है. नृत्यग्राम उस टाइम पर जो है बहुत एक नोन गुरुकुल था, अभी भी है, बट उस टाइम वहाँ 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते थे. उस टाइम 8 ही थे. So he had sent me there and he told me that, darling, you have to do your doctorate. Because everybody is expecting you to become a doctor. So you have to do your doctorate now, whether you do it in dance or you do it in English or you do wherever you want to do it, पर आपको करना है. So वहाँ से जर्नी शुरू हुई. वहाँ पे कुमी बहन से मिलना हुआ. वहाँ गौरी माँ थी, प्रतिमा बेदी जी. और प्रोफेशनल लाइफ जो है, उससे पहले जब मैं जोधपुर में थी और अजमेर में थी, तो परफॉर्मेंसेस बहुत की थी. तो शायद वो 6 वर्ष की उम्र से लेके 16 वर्ष की उम्र तक बहुत क्लैरिटी आ गई थी कि दिस इज़ द लाइफ आई वॉन्ट टू लीड. And I want to be doing something around dance in some or the other way. So probably वो decision making उसमें शुरू हुआ. और फिर तो then, as you know, went to Nrityagram, then went to Kadamb, performed with Kumi Ben, completed my PhD, and then landed in Delhi after marriage. And yes, then schools, SBKK, and as I said, now I'm with WUD. वेरी नाइस. एक काफ़ी छोटी उम्र से ही आपने ये करना शुरू कर दिया. एंड एज यू आर सेइंग कि बाय द एज ऑफ 16 यू न्यू कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है या कौन सी लाइन टो करनी है, कौन सा फील्ड टो करना है, विच इज़ वेरी गुड. मतलब बहुत टाइम लग जाता है. लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, दे आर स्टिल फिगर इट आउट, विच इज़ फाइन. सबका इंडिविजुअल जर्नी होता है, दैट इज़ ऑल्सो देयर. आई थिंक स्वाति, इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरी अपब्रिंगिंग का है इन राजस्थान. इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो है हमारे टाइम में, आई गो देयर वेरी लेस, बट हमारे टाइम में बच्चों को जो है बहुत ग्राउंडेड रखा जाता था. और उनको कहा जाता था, इवन माई पेरेंट्स, वो अभी भी यही कहते हैं कि ठीक है, तुम डांस में हो तो तुमने कुछ अलग नहीं किया है. कोई बंदा जो है वो मजदूरी कर रहा है, कोई बंदा है जो डॉक्टर बना हुआ है, कोई बंदा है जो डांस कर रहा है, कोई बंदा फिल्म्स में. तो नोबडी इज़ अबव एनीबडी एल्स. सो दैट groundedness helped. Secondly, when I was performing across, मैं संगीत नाटक अकेडमी जो है, राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी, उसके साथ मैंने बहुत परफॉर्म किया था और स्कूल्स में भी मैं करती थी. That's where I realized that there are dime a dozen dancers. मतलब, और डांस एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि इट इज़ सच अ विजुअल आर्ट कि जब मेरे से बेहतर कोई दिखने वाला भी आएगा तो ऑब्वियसली आई विल बी पुट असाइड. So I was I was very very clear that ways, and I think my parents, I'll give that benefit. मुझे इस चीज़ का था मेरे पेरेंट्स का कि वो इस चीज़ को ना बहुत, हम लोग इसको डिस्कस करते थे घर पे. What my sister wanted to take प्रज्ञा, what I wanted to do, हम डिस्कस करते थे उनसे. तो उनको ये क्लैरिटी दी कि हाँ बेटा ये सही, वो अपना फीडबैक देना. उस पर एक बहुत डिस्कशंस होते थे हमारे. दो बोथ ऑफ देम आर नॉट फ्रॉम परफॉर्मिंग आर्ट्स फील्ड. तो वहाँ से वो क्लैरिटी थी कि बेटा परफॉर्मेंस में अगर जाना है, डांस में अगर जाना है, तो फिर स्किल उस लेवल की होनी चाहिए कि आप इसको प्रोफेशन बनाएं. बिकॉज माई पेरेंट्स वर वेरी क्लियर दैट देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम दैट यू आर पुटिंग इनटू इट. पोस्ट मास्टर्स यू से कि बस अब तो मैंने बस स्कूल में टीचर बन जाना है या मैंने शादी करके घर पे बैठ जाना है, घर पे क्लासेस करनी है. दिस इज़ नॉट द वे आउट. सो यू थिंक अबाउट इट. एंड फॉर मी इट वॉज सो चैलेंजिंग एट दैट मोमेंट बिकॉज उस टाइम इतने ऑप्शंस दिखते नहीं थे. अब तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. OTT आ गया, ये आ गया, ग्रुप्स हो गए, सब कुछ. सो येस, आई विल गिव द कंप्लीट क्रेडिट टू माई एनवायरमेंट इन राजस्थान
एंड स्पेसिफिकली फैमिली, कि उन्होंने बहुत इस चीज़ को जो है क्लैरिटी रखी कि बेटा लेना है तो बेसिकली जो भी चूज कर रहे हो उसमें अपना 100 to 100% देना है आपको, Absolutely. तभी आप कुछ कर पाओगे. दिस इज सो ट्रू एंड आई फील यू हैव बीन फॉर्चुनेट. एब्सोल्युटली. Yeah, very nice, very nice. So, okay. So just let us know your transition. अभी जैसे आपने बताया आपका ये पूरा परफॉर्मिंग आर्ट्स का जर्नी रहा, बहुत सारे लोगों से, गुरुओं से आप सीखे, काफ़ी स्टेजेस पे परफॉर्म किया, उसके बाद एज अ परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेटर यू हैव एस्टेब्लिश योर सेल्फ. सो नाउ how was your transition from a performing arts educator and performing artist to the dean of a performing arts school? पहले स्कूल सिर्फ एजुकेटर थे, अभी हम डीन बन चुके हैं. ये ट्रांजिशन कैसा रहा? मेरी ना एक ही अच्छाई है मुझे लगता है, और वो ये है कि मैं ना नहीं बोलती किसी भी चैलेंज को, एंड आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी. So, you know, there's nothing like the word challenge for me. Everything is an opportunity, and probably that is the reason that the universe manifests it in that ways. क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है कि क्योंकि हमने कथक में जो है बेसिक ट्रेनिंग ली है, यू आर ऑल्सो फ्रॉम अ क्लासिकल बैकग्राउंड, यू विल अंडरस्टैंड इट ईजीली कि नृत्य जो शास्त्रीय साइड में या म्यूज़िक जो शास्त्रीय साइड में जाता है उसमें समर्पण सिखाया जाता है ताकि आप संचारी भाव तक पहुंच सकें. तो प्रभु के प्रति, गुरु शिष्य परंपरा में हम सीखते हैं तो हमारा समर्पण होता है. सो आई नेवर लुक्ड फॉर वैलिडेशन फ्रॉम पीपल. सो व्हेन आई परफॉर्म्ड ऑल्सो एंड नाउ ऑल्सो व्हेन आई परफॉर्म, आई डोंट वांट टू इम्प्रेस स्वाति. आई एम doing my dance for the divine or for myself, and I want to take you along on that journey. तो वो जो क्लैरिटी मुझे थी शुरू से, वो जो अभी भी है, उसकी वजह से मुझे हर चीज़ एक अपॉर्चुनिटी लगती है. बिकॉज मुझे लगता है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल द डिवाइन इज़ गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू कॉल्ड मी फॉर दिस. द मोमेंट यू कॉल्ड मी, आई नेवर सेड नो टू इट. आई डेंट इवन, यू सेड दीज डेज, या श्योर, दिस विल बी डन. आई रीस्केड्यूल्ड माई थिंग्स अराउंड इट बिकॉज फॉर मी, you have called me, that is a divine intervention, that you have given me an opportunity. So what happens is, जब आप gratitude को practice करते हैं और इस clarity के साथ करते हैं कि मेरे को validation नहीं चाहिए, क्योंकि validation का problem स्वाति ये हो जाता है कि फिर आप controversial statement करेंगे, इसकी बुराई की, इसका ये किया, उसका वो किया. You start looking and comparing yourself to other people. I am very happy and content in my space, but I am not satisfied with my journey still. I'm content, but I'm not satisfied. So I will keep upskilling myself. उसी वजह से ये ट्रांजिशंस हुए हैं, क्योंकि जब मैं गुड़गांव में थी, मेरा बेटा उस टाइम 2.5 साल का था, तो मुझे लगा कि यार ये स्कूल जाएगा तो मेरे को तो दिखेगा ही नहीं पूरा दिन, तो फिर मैं क्या करूँगी. तो मैंने कहा मैं इसके साथ स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ. And because I was a PhD, so I got a job. That's how you joined it. Absolutely. Okay. So I got into school, I was teaching, and I enjoy everything that I do. सो मेरे को बहुत अच्छा रहा वहाँ 2-2.5 साल. उसके बाद एक स्कूल आया, कुंस्कपस्कोलन. उसका मैंने बोर्ड देखा, उसका नाम मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा, आई टोल्ड माई हस्बैंड, आई सेड भैया अप्लाई कर देती हूँ. ही सेड क्यों? मैंने कहा तो इंटरव्यू में तो वो बोलेंगी कि हम कौन सा स्कूल है, तो फिर मुझे ना इसका नाम आ जाएगा. एंड दैट वॉज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग you would think, but I did that. And I was the first teacher of Kunskapsskolan. It's a Swedish school which started its branch in Gurgaon. And when I joined there, I was the first recruit there, and I was asked to develop the curriculum in a way कि वो लोग स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक के बराबर मानते हैं. वो ऐसा नहीं है कि ये जो है ये एक्स्ट्रा करिकुलर है और ये करिकुलर है, नहीं. तो उन्होंने कहा कि पारुल, जो अगर डांस है या म्यूज़िक है या थिएटर है, इवन पीई उनके यहाँ पर जो है फिज़िकल एजुकेशन, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आता है. तो ये सारा कुछ जो है तुमने एम्बेडेड करना इस तरह से करिकुलम में कि कभी साइंस की क्लास, मैथ की क्लास, इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास, जो भी क्लासेस हो रही उसके साथ में थीम वाइज एम्बेडेड हो. दैट वाज अ लर्निंग. आई नेवर न्यू हाउ टू डेवलप अ करिकुलम, बट आई डोंट से नो टू अपॉर्चुनिटीज़. एंड दैट्स वेयर वहाँ की जो ट्रेनिंग थी, बिकॉज जो फॉरेन अप्रोच है काम करने की, वो गुरु शिष्य परंपरा से बहुत अलग है. वो लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं और वो बहुत चाइल्ड सेंट्रिक, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो बच्चों को वो बिल्कुल यहाँ पे रखते हैं और उनका चाइल्ड सेंट्रिक काम होता है. सो व्हेन आई लर्नड दैट, आई अंडरस्टूड दैट वी आर नॉट अक्रॉस द टेबल एज अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. नहीं तो हमेशा होता है ना कि
गुरुदेव वहाँ हैं और हम यहाँ हैं. So I understood that I have to be a teacher and I have to be with them, friendly, not friends, but I have to get down to their level to teach them. क्योंकि mine is a PhD. अब मैं सोचूं मैं क्लास 2 के बच्चे को जो है बिल्कुल ही ऐसे 25 चक्कर कर लूं. To understand the scale, to understand their head space. Yes. So, and thereafter I got this opportunity to be a principal in Shri Ram Bharatiya Kala Kendra. That was great because अब करिकुलम पे इतना काम कर लिया था तो उसके बाद में जो है लिखना शुरू कर दिया था, कुछ एडिटिंग करना, ये करना, वो करना, प्रूफ रीडिंग, इस तरह से. तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती थी तो वो ट्रांजिशन जो है वो बहुत ग्रेजुअल, इट वाज नथिंग प्लान्ड, बट जो चीज़ सामने से आती गई वो उस तरीके से हम करते गए. और जब WUD में ये जॉब निकली थी तो मैंने कहा मेरी डॉक्टरेट है तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर तो ले ही लेंगे. तो आई जस्ट अप्लाइड बिकॉज आई गेट बोर्ड वेरी इजीली. 2-3 साल 4 साल में फिर मेरा मन उठ जाता है. तो नया करना है और परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ ही करना है. तो उसके बीच में मैंने ग्रेड 8 कर लिया था फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज लंदन. तो वो मैंने परफॉर्मेंस आर्ट्स में किया था. तो देन उस टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा थिएटर के साथ में और इसके साथ में बट इंडियन साइड पे काम किया था. तो फिर जब मैंने वहाँ अप्लाई किया एंड व्हेन द वाइस चांसलर कॉल्ड मी एंड देन ही ऑफर्ड मी द जॉब ऑफ द डीन एंड आई वाज लाइक ओके फाइन. ही सेड यू हैव टू सेट अप दिस होल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. आई सेड ओके एंड देन अगेन आई टुक इट अप एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ चैलेंज एंड देन आई जस्ट from the scratch started with it, and touchwood we are doing really great just now. I have 6 PhD students under me. Wow. We have around 40 students there in both bachelor's and master's, and it is growing beautifully. Dance, फिर music, फिर eventually अब theatre भी आ जाएगा. So transition जो है, क्योंकि एक तो validation नहीं चाहिए मुझे किसी से. मैं जब भी नौकरी छोड़ती हूँ मुझे सब यहाँ तक कि घर से भी डांट पड़ती कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतनी अच्छी जॉब कौन छोड़ता है ना. I'm like छोड़ दी. मैं महीने भर बाद बताती हूँ जब छोड़ने के भी, क्योंकि डर लगता है अभी भी. तो मैं कहती नहीं छोड़ दी बिकॉज मन कहता है कि, एंड माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव. अंकुश इज़ लाइक चल तेरे को नहीं ठीक लग रहा तो गो हैड डू व्हाटएवर यू वांट. एंड सेकंड थिंग इज आई फील दैट इफ़ यू आर गुड एट योर वर्क द मनी विल कीप कमिंग इन. And how much is enough is something that you decide. My father always says this and I always keep repeating it to myself and to the viewers also should listen to it कि रेस में दौड़ना बहुत ज़रूरी होता है, पर जब रेस ख़त्म हो गई है आप उसके बाद भी दौड़ते रहो. सो वेयर डज माई रेस फिनिशेस इज आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू डिसाइड दैट कि मेरी रेस अब ख़त्म हो गई है. सो दैट्स व्हाट आई से दैट आई एम वेरी कंटेंट विद व्हाट आई हैव. But I'm not satisfied with my journey. Right. I'm not racing around. I'm not कि भैया स्वाति ने 1 पॉडकास्ट कर लिया तो मैं 10 पॉडकास्ट कर लूँ. Just get out of that. So that's I think that transition eventually happened because of that. And still too much to happen. I'm sure. But जब ये ट्रांजिशन हो रहा था, जैसे आपने बोला कि आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर सोच कर गए थे, पर फिर डीन का पोजीशन ऑफर हो गया. ये फिर एक मतलब जैसे जैसे आपका ये बढ़ता है, औहदा बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं. तो कहीं किसी टाइम पे ये नहीं फील हुआ कि ओके अब ये मैं हाँ तो बोल दिया है मैंने, लेकिन क्या रहेगा, या कहीं ये थोड़ा डर आए हो या फियर आए हो कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या इट्स अ पूरा यूनिवर्सिटी को चलाने वाली बात हो गई है तो कैसे हो पाएगा, क्या लाइक विल आई बी एबल टू डू इट, और हो भी जाएगा तो कहीं कुछ रह तो नहीं जाएगा, एनीथिंग? नॉट एट ऑल स्वाति. मेरे साथ में ये प्लस पॉइंट है. एक तो आई बिलीव स्ट्रांगली इन द फैक्ट दैट आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. सो मुझे पता है कि अगर कोई चीज़ सामने से आई है तो मेरे अच्छे के लिए आई है, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव इन दैट. सो वो एक चीज़ है मेरे दिमाग में. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट व्हाट हैपन्स इज दैट व्हेन यू टेक समथिंग you have to understand that you have to upskill yourself also. शायद इसीलिए मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता या काम करने में परेशानी या मुझे कभी प्रॉब्लम्स नहीं दिखती, क्योंकि मेरे सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसमें मैं ये सोचती हूँ कि मैं खुद को कैसे अपस्केल करूँ, मेरी स्किल को कैसे बढ़ाऊँ मैं. तो वो जो, क्योंकि बीइंग अ लर्निंग इट इज़ सो मच फन फॉर मी बिकॉज टॉकिंग टू डिफरेंट HODs फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, ट्राइंग टू ब्रेनस्टॉर्म की क्या ज़रूरत है. जिस तरह का कोर्स हमने बनाया है वो बहुत क्लियर है कि जैसे द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम टू माई माइंड एंड विच आई डिस्कस्ड विथ माई कलीग्स ऑल्सो वॉज, मैंने कहा दिल्ली के पास में आप एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट खोल रहे हैं जिसमें अगर आप क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूज़िक सिखाएंगे, सारे बड़े गुरु दिल्ली बैठे हैं. बिल्कुल. तो कोई वहाँ क्यों आएगा? वो वहाँ आएगा क्योंकि उसको अलाइड आर्ट फॉर्म्स भी सीखने हैं.
क्योंकि गुरुजी आपको जो, जैसे अब आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये आपको आपके गुरुजी ने नहीं सिखाया है, यू हैव लर्नड इट योरसेल्फ. हाउ टू मेक योर पोस्टर, हाउ टू लुक एट योर सोशल मीडिया, यू टीचिंग इन अ स्कूल, हाउ टू मेक योर लेसन प्लान्स, हाउ टू टॉक अबाउट even the way you kind of communicate about whatever art you are learning. एंड उसी ट्रांजिशन के अंदर, उसी टाइम के अंदर, उस 3 साल के अंदर फिर मैंने जो है ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से ATCL भरा, और वो मैंने किया, एंड इंडीड आई गॉट अ गुड, आई गॉट 94%, सो आई काइंड ऑफ क्लियर इट विद डिस्टिंक्शन फॉर द सिंपल रीज़न दैट मुझे वो क्लैरिटी चाहिए था कि जब हम एक पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं तो उसमें फाइनेंशियल्स आ जाते हैं. करेक्ट. तुम मुझे क्यों बुलाओगी? अगर तुम मुझे बुलाओगी तो तुम मुझे पैसे क्यों दोगी? अगर तुम मुझे पैसे दे के परफॉर्म करा रही हो, कुछ करा रही हो, तो मुझे देखने के लिए कोई टिकट दे के क्यों आएगा? These are very self-reflective questions that every artist has to ask, that why somebody will come and watch me. And that is the reason choreographies चल रही हैं आजकल. बिल्कुल. क्योंकि आप जो है वो विजुअल देखने जाते हैं. सोलोज को क्यों स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि what are you bringing on table? When people are coming to listen to you, what are they taking back from you? When are they watching you, what are they taking back? So true. Where's the connectivity? Where's that freshness? तो वो डर आपको आएगा ही नहीं अगर आप प्रिपेयर्ड, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी भी आ जाती है. बिल्कुल. कभी भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएगी, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम. जैसे यू आर अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जस्ट नाउ, आप डेली रियाज करते हो ना, शो तो जब आता है तब आता है. सेम वेज इफ यू टेक अप अ चैलेंज, इफ यू टेक अप एन अपॉर्चुनिटी, देन यू हैव टू कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ. एंड स्पेसिफिकली थिंग्स लाइक लैंग्वेज, हिंदी अंग्रेज़ी दोनों. उसके अलावा हमारे लिए तो संस्कृत में भी पढ़ के और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शास्त्र पे सब कुछ डिपेंडेंट है. सो डर तो नहीं लगा. डरती तो मैं किसी से नहीं वैसे. वेरी नाइस. मतलब इंटरेस्टिंग रहा इसको एज अ चैलेंज लेके बस आगे बढ़ते हैं. आई एम एंजॉयिंग इट. आई एम श्योर. हेलो मैम. हाय. सो अभी हमने थोड़ा सा जाना आपके बारे में. आई वुड लाइक टू कम बैक टू स्कूल्स, क्योंकि वी ऑल हैव बीन पार्ट ऑफ द स्कूल नाउ डेज, एंड आई फील रियली गुड कि जो आज का करिकुलम है, जो आज का लेसन प्लान है, वो बहुत ही इंटीग्रेटेड लर्निंग है. लाइक व्हेन आई जॉइन स्कूल, माय प्रिंसिपल मैम टोल्ड मी कि ऐसे इनकॉर्पोरेट करना है, एंड इट वाज लाइक क्या ये तो होता ही है. मतलब आई फेल्ट के व्हाई दिस थिंग इज नॉट डॉक्यूमेंटेड. Because it's already there. We have been incorporating text stories into our dance from a very long time, and so what I felt was because of these integration, which is again a good thing. It makes the learning, the overall learning, very interesting. Right. But isn't it like that कि ये जो डांस की नीश ट्रेनिंग है वो कहीं इम्पैक्ट कर जाती है उसमें? देखो श्री, मेरा ये मानना है कि इट इज़ अ सोलो जर्नी. तो आप जितना, वही कहते हैं ना, जैसे दाल में जितना घी डालोगे वो उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी. तो आप जितना अपने पे काम करोगे और कैसे करोगे, ये हर एक की जर्नी अलग है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई जो स्कूल में सिखाने जाता है, वो उस टाइम पे, गिवन योर एग्जाम्पल, यू आर ऑल्सो अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, तो आपके शोज़ भी होते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग एक अलग लेवल की है. जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो मेरा बच्चा 2.5 साल का था. तो मेरी जो ट्रेनिंग थी उस वक्त वो ये थी कि बिकॉज मैं लिंग्विस्टिकली मेरे बेटे के साथ भी काम कर रही थी, दैट वॉज द टाइम आई थॉट दैट मैं क्यों ना अपनी आगे की पढ़ाई कर लूँ. और इसीलिए मैं ग्रेड 8 करने के लिए मुड़ गई टूवर्ड्स ट्रिनिटी कॉलेज लंदन. सो बेसिकली ये है कि इट इज़ एन इंडिविजुअल जर्नी. और बहुत आसान है ये कहना कि ये नहीं हो सकता. जो मैं आजकल कई बच्चों को देखती हूँ कि जैसे मैं किसी शो के लिए या किसी चीज़ के लिए बात करती हूँ, तो वो ये कहते हैं कि मैम इसमें ये प्रॉब्लम है, ये पहले अगर हम 25 प्रॉब्लम्स देख लेते हैं तो फिर हम उस चीज़ को उस पैशन के साथ, उस प्रेम के साथ कर ही नहीं पाते हैं. सो बेसिकली इफ़ यू आर इंजॉइंग द सैलरी दैट यू आर गेटिंग, then you will have to enjoy the pain that you have to endure while that extra training. क्योंकि एक होता है आप अपने गुरुजी के साथ हैं, सुबह से शाम अपना रियाज कर रहे हैं. एक आप सुबह जो है 7:30 से लेके 3:30 तक स्कूल में है, 5 or 6 days a week depending on your schedule, and then you have to give that extra time. But it is thoroughly your choice.
तो इम्पैक्ट तभी करेगा जब आप उसको इम्पैक्ट करने देंगे. अदरवाइज यही होता है. एंड आई थिंक यू ऑल हैव डन इट ऑल्सो. व्हेन वी वॉक इन फॉर इंटरव्यूज वी नेगोशिएट दैट पार्ट वेरी क्लियरली, दैट आई विल बी परफॉर्मिंग, आई विल बी डूइंग दिस. एंड द स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया नाउ हैज़ चेंज्ड अ लॉट एंड दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज आजकल ना उनको फैकल्टी के अचीवमेंट्स दिखाने होते हैं. तो उनके लिए तो बहुत अच्छा, उन्होंने आपके लिए शो नहीं ढूंढा है. आप खुद जाके G20 में परफॉर्म करके आ रहे हो, ब्रिक्स में जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो स्कूल के लिए वो बहुत अच्छी बात है. हाउ डू यू पिच इट एंड सेकेंडली हाउ मच यू कैन, वही होता है ना, डोंट टेक टू मच ऑन योर प्लेट दैट यू कैन नॉट चू. आपको अपनी लिमिटेशन भी पता है. तो मुझे लगता है कि नहीं इम्पैक्ट करती अगर आप नहीं चाहेंगे कि इम्पैक्ट करना. इट्स एज सिंपल एज दैट. इट्स अ चॉइस यू मेक. No, because what I felt was क्योंकि there was an integrated learning for sure, and I was training them separately. Separately working on their movement, working on their choreographic skills, giving them some sort of homework, giving them instances to play with. Basically helping them how to create improvisation sessions. But this is not happening in many of the schools because this is not part of the curriculum. So what I felt was कि चलो मैं तो डांसर बन गया, मेरे को अच्छे गुरु मिल गए. What about them? Maybe few of them wanted to come up and say कि सर हमको डांस एज अ करियर लेना है एंड वी वुड रियली लाइक टू एक्सप्लोर. वो मेरे साथ हो पाया बिकॉज आई हैड वेरी फैंटास्टिक टीचर्स मेरे स्कूल में. सब में नहीं है. बट डोंट यू फील दिस इज अ चैलेंज दैट वी ऑल नीड टू टेक अप कि हमने इंटीग्रेट तो कर दिया पर एक डांस करिकुलम टू हैव अ पर्टिकुलर, जैसे बाहर है, बाहर छोटा बच्चा पहले सीख रहा है, वो बहुत छोटे से ही सीख रहा है, ऐसा करिकुलम का पार्ट है और बहुत नीश से ही बिल्कुल सही सीख रहा है. लाइक नॉट इंटीग्रेटेड. Not saying integration is bad. We do a lot of contemporary work. We do play with our Mayurbhan Chao stuff as well, which is great. But first of all, to have the niche training, and then you play with it. Right. So now you are talking about students. Yeah. कि उनका जो मेन डांस फॉर्म है वो इम्पैक्ट. श्री, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी. हम स्कूल में साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं. तो क्या हम स्कूल में ही पढ़ते वक्त सर्जन बन जाते हैं? स्कूल में ही पढ़ते वक्त हम इंजीनियर बन जाते हैं? ये हमारी विडंबना है कि क्लासिकल डांस फॉर्म्स या इवन आई वुड से थिंग्स लाइक बैले, बिकॉज बैले इज़ ऑल्सो क्लासिकल, या कंटेम्प्रेरीज अगर आप लें, ये हमारी विडंबना है कि हमें ये लगता है कि ये चीज़ जो है वो स्कूल के टाइम में हो जानी चाहिए. स्कूल आपकी ग्राउंडिंग है. जिसने वो चॉइस करनी है, जैसे बहुत से बच्चे हैं, आपने देखा होगा 10वीं के बाद वो डमी स्कूल्स ज्वाइन करते हैं. वो कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई जेई की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है. तो हमारे पास तो ये प्लस पॉइंट है कि हमारे गुरुज तो हमारे आसपास हैं. सो ये कभी भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो शिष्य तैयार करे. वो शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना गुरु ढूंढे और फिर जो गुरु दे रहा है उसमें से जितना मैक्सिमम लेके एंड विथ फुल सिंसियरिटी उसको परफॉर्म करे. राइट. सो मैं डांसर बनना चाहती हूँ इन ग्रेड 8. तो मैं ग्रेड 8 में बन जाऊँगी डांसर. ठीक है, मेरे दिमाग में ये कि मैं बन गई क्योंकि मैंने 1-2 रील्स बना ली हैं जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दी है और अब उसके 5 लाख लाइक्स आ गए हैं. या मुझे समवेयर फ्रॉम द स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम मुझे सियोल भेज दिया गया है, मुझे जापान में कहीं कुछ करवा दिया गया है, मुझे कहीं किसी और कंट्री यूके भेज दिया गया है. नहीं, आप डांसर नहीं बन गए. सो इफ़ द चाइल्ड इज़ पैशनेट, मेरे हस्बैंड का भतीजा है, भांजा है, भतीजा. So he was so passionate in school. He was very clear that he wants to be a doctor, and he is in doctorate just now. तो उसने वो प्रेपरेशन की, उसको सर्जन बनना है या क्या बनना है whatever, लेकिन अब वो मेडिकल स्कूल में है. हम ये क्यों सोचते हैं कि वो बच्चा जो है वो 8वीं 10वीं में जो है फिर आके और फिर वो बस पूरा एक फुल फ्लेज परफॉर्मर बन जाए. लॉट ऑफ पेरेंट्स कम टू मी एंड आई ऑलवेज आस्क देम, मैं कि वो सर्जरी कर लेगी 12th तक अगर वो साइंस लेती है तो, या वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहती है तो वो एक बिल्डिंग बना लेगी 12वीं तक? नहीं, या बना लेगा? नहीं ना. सेम वेज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ स्कूल टीचर, आई एम नॉट टॉकिंग एज अ कथक टीचर और अ छाऊ टीचर, आई एम टॉकिंग एज अ स्कूल टीचर. आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज
टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट रसिक, जिनको आर्ट अप्रिसिएशन आती हो, कि वो ना ये ना हो कि स्पिक मेके का प्रोग्राम हो रहा है, सामने एक बहुत बड़े गुरु जो हैं वो ध्रुपद गा रहे हैं और बच्चे ऐसे बैठे देख रहे हैं दैट व्हाट इज़ ही डूइंग, बिकॉज वो हमने क्लास में उनको ट्रेन किया, उनको हमने रागों के बारे में समझाया है, हमने उनको डांस फॉर्म्स के बारे में समझाया, वहाँ हमने कोताही नहीं बरती है। लेकिन आप सोचिए कि मैं एक ध्रुपद सिंगर अपनी क्लास से निकाल दूँ, एक छाऊ डांसर अपनी क्लास से निकाल दूँ, ये आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। And that is the reason a lot of teachers get frustrated in school and they leave school. Because मैं अपना बताती हूँ, मैं PhD करने के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया था और मुझे कभी बोलते जी रोबोटिक्स डांस कराओ, मुझे कहते जी कभी कुछ ये वाला कंटेम्प्रेरी करा दो, आज जो है अर्थ डे है तो अर्थ पे कुछ करा दो, एंड आई यूज टू थॉरली एंजॉय इट। मुझे अभी भी आप कह दो, बिकॉज यूट्यूब है, टेलीविजन दिया जाता है आपको, कंप्यूटर्स दिए जाते हैं, बच्चे पिकअप लाइक दिस एंड यू लर्न सम बेसिक लैंग्वेज ऑफ दैट डांस फॉर्म, व्हाई नॉट। मैं वहाँ पर जो है जयपुर घराना की जिसे कहना चाहिए एक वो बन के नहीं गई हूँ एम्बेसडर, कि वहाँ पे सारे जो मेरी क्लास में 50-60 बच्चे हैं उनको मैं जयपुर घराना में पारंगत कर दूँ, नहीं। और यही रीज़न होता है कि जो बच्चे डांस में अच्छे हैं फिर उनके साथ पार्शियलिटी होती है, क्योंकि आप उन्हीं को आगे रखते हो। योर एम एज अ टीचर इज़ टू एजुकेट एवरीवन, यू आर देयर टू क्रिएट रसिकास, यू आर देयर टू क्रिएट awareness about this. You are not there to train them and make them some dancer. Yes, the ones who are good, you can guide them. So वो आप उनको बड़े सीनियर गुरुज के पास भेज सकते हो, अगर आप अपनी खुद की एकेडमी चलाते हो बच्चा वहाँ आ सकता है, या वो कहीं जाकर सीखना चाहे, पढ़ना चाहे, 12th के बाद उसमें पढ़ना चाहे, आप उसको गाइड कर सकते हो। बट गिवन अ फैक्ट दैट इन अ क्लास देयर आर मिनिमम 55 चिल्ड्रन, और अगर बहुत जिसे कहते हैं हाईली चाइल्ड सेंट्रिक स्कूल होता है तो 30 बच्चा तो होता ही है। 30 बच्चों को आप सोचो कि 40 मिनट्स की क्लास में मैं छाऊ डांसर बना दूं या कथक डांसर बना दूं, नॉट पॉसिबल। गलत सोच ही गलत है। सो सबको छाऊ अच्छा लगे कि जब हमारे यहाँ पर कोई एक अच्छा डांसर आए, कि माधवी मुदगिल जी आकर जब ओडिसी कर रही हैं तो बच्चे ताल दे रहे हैं साथ में, उनको समझ आ रहा है, देव हर्ड ओडिसी म्यूज़िक, दे हैव सीन ओडिसी। सिर्फ ये नहीं है कि एक वो हमने एक वो बना दिया आर्टिकल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया फोटोएं चिपका के, और ये नहीं है हमारा काम। उन्हें ताल देना, उन्हें विजुअली अंडरस्टैंड करना कि स्टेज को वो कवर कर रही हैं, ओह, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ डिस्कशंस दैट यू हैव आफ्टरवर्ड्स इन क्लास, दैट वाज शी कवरिंग द स्टेज, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट इट, व्हाट इज समथिंग दैट यू थॉट वाज मिसिंग, एंड दैट इज़ वेयर द होल स्कूल के अंदर आपका जॉब यही है। और तभी आप मज़े कर सकते हैं उसमें, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। द मोमेंट यू से कि मुझे एक यहाँ से तो एक छाऊ डांसर निकालना है, गॉन, बिकॉज अर्थ डांस एंड रेन डांस एंड दिस डांस एंड दैट डांस में वो हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। उसमें तो नहीं हो पाएगा। सर्जरी सीखने के लिए जाओगे ना मेडिकल स्कूल, डांस सीखने के लिए जाओ, देव अपना जीवन। हम भी गए थे, नृत्यग्राम गए थे, हम भी गए थे, कदम गए थे, या तुमने भी जाके जो गुरुजी से सीखा है अपने, तो एवरीबडी, बिकॉज इसीलिए लोग ना, हर कोई आजकल, मुझे इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा आता है, मुझे जो भी मिलता है बच्चा, उसका पेरेंट पहले ये कहता है मैंने तो आई हैव लर्नड कथक इन माई स्कूल टाइम। आई एम लाइक यस ग्रेट, आई हैव डन ग्रेड 8 इन कथक फ्रॉम गांधर्व और फ्रॉम प्राचीन, एंड आई एम लाइक ठीक है बहन, तुम सीधा खड़ी नहीं हो पा रही हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि तुम्हें कथक का ग नहीं पता, बिकॉज हमने ही उसको इतना लाइट बना दिया है। एज टीचर्स हमने उसको इतना वो कैजुअल बना दिया, एनीबडी कैन डांस, नो एवरीबडी कैन नॉट डांस, एवरीबडी कैन मूव, बट एवरीबडी कैन नॉट इवन मूव रिदमिकली। तुम स्कूल में सिखाते हो, कितने बच्चे जो बेताले होते हैं और बेसुरे होते हैं, एंड हाउ डू यू स्ट्रगल विद देम। तुम क्या करते हो फिर, उनको ऐसे मूवमेंट्स देते हो जिसमें कि कुछ लय ताल का कोई मतलब ही नहीं है। सो आई एम लाइक नो, एनीबडी कैन डांस, नोबडी, आई मीन इट इज़ साधना। और मैं सिर्फ ये शास्त्रीय नृत्यों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं राजस्थान से आती हूँ, घूमर आप देखिए, घूमर आप करके देखिए ना, अभी खड़े होके आप सोचे पद्मावत के गाने पे घूमर करके रील बना ली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप घूमर के एक परफॉर्मेंस 5 मिनट के गाने पे आप मुझे सीधा परफॉर्म करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँ आपको, क्योंकि जब वो पोस्चर लिया जाता है घूमर का,
इट इज़ लाइक लेग ट्रेनिंग एंड यू जस्ट कांट टेक इट. जिस तरह से वो कलाई घूमनी होती है, एग्जैक्टली. जिस तरह से चेहरे को कवर करके मूव करना है इन सिंक्रोनाइजेशन, इवन व्हेन यू डूइंग इट अलोन, आपको डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना कि आपने कहाँ हाथ जोड़ने हैं और कहाँ पे क्या करना है. सो ट्रू. सो आप कोई भी डांस फॉर्म, कोई भी म्यूज़िक फॉर्म, इट इज़, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट टू एनी अदर प्रोफेशन, पर आप उसको इतना लाइटली मत लीजिए. आप सड़क पे चलते ऐसे किसी से मिलते, आप ये नहीं कहते ना मैंने बचपन में मैंने एक बिल्डिंग बनाई थी, बचपन में मैंने एक सर्जरी की थी, बचपन में मैंने कुत्ते की जान बचाई थी. और ये डांस मैंने बचपन में डांस किया था. क्योंकि आपने 10th से पहले क्लास में जाके सबसे आगे आपने डांस कर लिया, घर पे गुरुजी ने किसी ने आके सिखाया, या आपने डांस क्लास, आजकल डायमंड डजन इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ऐसे सिखाया जा रहा है. बट दैट्स द होल थिंग, वी ब्रिंग इट डाउन. As artists, we take it so lightly. Anybody can dance. No. Anybody can appreciate dance, enjoy dance. Yes. I enjoy music a lot. गज़ल सुनना, यू नो, अभी लेटेस्ट मेरा वो चला हुआ है कि पाकिस्तानी जो गाने हैं वो कवाली एंड ये सारा मिक्स तो सुनना. बट आई विल नेवर डेयर टू से कि आई कैन सिंग लाइक सजाद अली. मैं भी गाती थी सजाद की तरह जब मैं छोटी थी. You don't dare do that. So it's very clear that it is a sadhana, it is a serious profession, and you need to learn a lot of things with it. आप हॉस्पिटल खोलते हैं तो फिर आपको लॉज देखने पड़ते हैं, फिर आपको उस तरह की क्वालिफिकेशंस देखनी पड़ती है, अपने डॉक्टर्स असिस्टेंट्स की या ये वो रखोगे. सेम गोज फॉर डांस स्टूडियो. तुमने खोला है डांस स्टूडियो, यू नो व्हाट आर द लीगैलिटीज ऑफ इट. हाउ डू यू अप्लाई फॉर अ ग्रांट, हाउ डू यू काइंड ऑफ क्यूरेट इन अ वे कि यू डोंट गेट इनटू लीगल नॉनसेंस. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड इट इज़, आई विल नेवर से एनी प्रोफेशन इज़ अ ईजी प्रोफेशन, बट यू हैव टू टेक इट सीरियसली. आप सोचो कि यार 4 रीलें बना के तो मैं डांसर बन गई, उफ नो, तो देर इज़ अ टू मच ऑफ वर्क. मेरे पास आते हैं बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं इन द यूनिवर्सिटी ऑल्सो, एंड व्हेन आई वाज विद SPK के ऑल्सो, दे यूज्ड टू थिंक कि बस हम आएंगे और थोड़े ऐसे 2-4 चक्कर लेंगे. अच्छा, डांस में पढ़ना भी पड़ता है. अभी भी मुझे एज अ डीन ऑफ स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मुझे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डांस में पढ़ाई होती है, म्यूज़िक में पढ़ाई होती है. मैंने जो हमेशा कहती हूँ कि शास्त्रीय कम्स फ्रॉम शास्त्र माने. सो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट अगेन एंड अगेन, दैट अनलेस वी एज आर्टिस्ट, हमें ऐसे नहीं हो जाना है कि भाई हम तो डांसर्स हैं और तुम लोग डांसर्स नहीं हो, या हम तो आर्टिस्ट हैं तुम आर्टिस्ट नहीं हो. वी आर डूइंग आवर जॉब द वे यू आर डूइंग योर जॉब. Somebody in a MNC is doing a brilliant job. Somebody, a CA, is doing an excellent job. I, as a performing artist, I'm doing an excellent job. I'm very proud of the fact, but very humble also about it. But there is no less work that has been put into this. क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में है डिज़ाइन है, फैशन है और भी चीज़ें हैं, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि अगर किसी बच्चे ने एक डिज़ाइन बना के और सबमिट कर दी, और उसने बोल दिया, जैसे मैंने तुम्हारी डिज़ाइन उठा के सबमिट कर दी, मैं बोल सकती हूँ कि ये तो मैंने बनाई है, आई कैन टेक अवे द क्रेडिट. बट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इट इज़ योर बॉडी विच इज़ योर प्रेजेंटेशन. मैं डांस करके ये नहीं कह सकती कि मैंने श्री का डांस कर लिया. मैं कोरियोग्राफी ले सकती हूँ श्री की, लेकिन जो श्री कर सकता है वो मैं नहीं कर सकती, और जो मैं कर सकती हूँ वो श्री नहीं कर सकते. सो हमारी बॉडी पूरी ज़िंदगी हम उससे काम पे लगा के रखते हैं. इट हैज़ नथिंग टू डू विद AI, इट हैज़ नथिंग टू डू विद ड्राइंग्स एंड ऑल. ऑब्वियसली वी डू व्हेन वी डू कोरियोग्राफी एंड एवरीथिंग, लेकिन हमारा शरीर जो है वो हमारा पूरे टाइम टूल होता है. इंस्ट्रूमेंट हम साथ में रखते हैं तो उसको बजाने के लिए भी हमें अपनी बॉडी को ही यूज़ करना है, गाने के लिए भी वही यूज़ करना है. सो बहुत मेहनत लगती है. इट इज़ एन एक्सट्रीमली सीरियस प्रोफेशन, एंड व्हेन पेरेंट्स वॉक अप टू मी एंड दे से शी वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, सो देन आई आस्क देम, यूट्यूब म्यूजिशियन और a musician? Yeah, the actual musician. So coming back to the same thing, like this reel culture kicking in, and people are not believing in repertory concept. Like we used to be in repertory. We used to do training from morning 9 to 5, like vigorous training. Just like we did in school. Like we did school from 7 to 2. We did the dance के training from 9 to same thing. And उसमें तो हम लगे हुए हैं, हम पूरे दिन लगे हुए हैं, और ये भी नहीं सोच रहे कि क्या आउटकम आएगा या क्या नहीं आएगा. और मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि मैंने कहा देखो, आपने 13 साल स्कूल में दिए हैं, आप 3 साल में
बैचलर्स करते हो, 2 साल में मास्टर्स करते हो, सेम जर्नी आपकी एज अ डांसर रहेगी. आप ये नहीं सोच सकते कि 2 महीने 3 महीने में आप डांसर बन जाओगे या साल भर में. आपकी जर्नी है, हो सकता है जो चीज़ मैंने 5 साल में सीखी हो आपने 2 साल में सीख ली हो. बट दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. ऑल्सो विद दिस रील कल्चर कमिंग इन, आपको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं एज अ डीन, क्योंकि ये नया लॉट आया है अब बच्चों का जो दे आर विलिंग टू डू, बट शायद उनको जो दिख रहा है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है. देखो श्री, this is not my responsibility to create dancers or serious musicians. आपने अगर अपनी स्कूल के बाद में शाम को जो है जाकर एक स्टूडियो में ट्रेनिंग की है, दैट वाज अ चॉइस यू मेड, दैट वाज नॉट अ सैक्रिफाइस, बिकॉज पीपल पुट इट दैट वेज कि हम तो, मेरे सारे दोस्त क्रिकेट खेल रहे होते थे और मैं वहाँ पर रियाज कर रही होती थी. दैट्स अ चॉइस यू मेड. ऑफ कोर्स. सो तुम्हारे दोस्त क्रिकेट खेल के जहाँ पर भी पहुँचे वो कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट तुमने जो चूज़ किया. सो यू नो, मुझे हमेशा ये चीज़ लगती है, एंड देन अगेन पीपल गेट अपसेट विद मी ऑल्सो विद दैट व्हेन आई से दैट दे आर ह्यूमन बींग्स एंड देन देर आर आर्टिस्ट. और उसका रीज़न मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ना ये गॉड गिफ्ट होती है. अभी हमारे पास एक बच्चा आया है, नॉट गोइंग टू नेम द किड, वो किसी और डिपार्टमेंट से हमारे पास आया है, और जब वो नाचती है तो उसको देख के लगता है बनी ही नाचने के लिए है. और अभी वो डांस को जो है वो नृत्य लेवल पे नहीं करती, वो नाचने वाले लेवल पर ही करती है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो नृत्य तक नहीं पहुंची है वो. बट यू कैन सी दैट, एंड द वे शी फील्स अबाउट डांस, यू कैन सी दैट इन हर आइज. तो जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, आप ये ना सोचें कि पढ़ाई में नहीं अच्छा तो उसको म्यूजिशियन बना दो या डांसर बना दो. आजकल तो OTT पे बहुत काम होता है. इवन व्हेन यू आर मेकिंग अ वीडियो, आपको पता है कि आप जब ये पॉडकास्ट करेंगे, इसकी साउंड, इसकी वीडियो एडिटिंग, इसकी हर चीज़ में टेक्निक सीखनी पड़ती है. Exactly. और मेहनत लगती है, एंड इट इज़ अ फ्रस्ट्रेटिंग जॉब कि मैम का हाथ इस पे लग गया था और इधर से ये आवाज़ आ गई थी, उधर से वो हो गया था, ओ नाउ वी कांट कॉल हर बैक, हाउ डू वी डू दिस. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन एट द बैक एंड. सो सेम वेज क्या होता है कि जो ये जेन जी जो अभी आती है मेरे पास में, पेरेंट्स भी आते हैं, तो मैं उनको बहुत क्लियरली पूछती हूँ कि आप चाहते क्या अपने बच्चे से, क्योंकि ये हमारा करिकुलम है, ये करिकुलम तो उन्होंने करना ही है. लेकिन इस करिकुलम को करने के बाद में देयर विल बी चिल्ड्रन हु विल बी गेटिंग अ प्लेसमेंट like in any other education field, and there will be children who will not get any placement. और उसका रीज़न बहुत क्लियर है कि मेरा जो शरीर है वो मेरा टूल है. अगर मैंने उस पर काम नहीं किया है, अपनी स्किल्स पे काम नहीं किया है, तो मुझे कोई नौकरी पे नहीं लेगा. अब आज तुम अगर कलरी पयट का एक शो आए, तुम मेरे बहुत अच्छे जानकार हो, तुम मुझे नहीं लोगे. नहीं मैम आप नहीं कर पाएंगी. क्यों नहीं कर पाएंगी वो भले ही तुम ना बोलो, बट तुम बोल दोगे कि मैम आप नहीं, बिकॉज आई एम नॉट फिजिकली फिट टू गेट इन टू दैट रिगरस ट्रेनिंग एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. दैट कैन हैपन विद अ 16-year-old ऑल्सो. बिकॉज अगर आप रियाज नहीं करोगे, आपके पैरों से बोल नहीं निकल रहे, तो आप सोचो कि मैं जाके और पूरा कथक का एक रेपेटरी में डांस कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो आई वुडंट यूज़ द वर्ड चैलेंज, बट एक चीज़ है कि इसकी सीरियसनेस को समझाने के लिए मुझे कई बार 1.5 2 घंटे की मीटिंग्स करनी पड़ती है पेरेंट्स के साथ, उनको ये समझाने के लिए कि जब तक आप 4 घंटे रियाज नहीं करेंगे, तब तक आप 15 मिनट स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. विद द मेकअप, लाइट्स, दिस दैट, इट इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर. अभी भी जब मैं you have made it so comfortable for me, but still when I was coming and when I came and sat, there was a stress कि क्या पूछेंगे, क्या बोलूँ, ध्यान रखना है, कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज I mean I speak very you just speak it from my heart and I'm very blunt, I would say so. तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है. तो मैं पेरेंट्स को यही बैठ के समझाती हूँ, एंड द पेरेंट्स मेक द चॉइस. क्योंकि कुछ पेरेंट्स यूट्यूब पे अपने बच्चों को देख के इतना खुश हैं, जो यूट्यूब चैनल उन्होंने खुद ही बनाया है, उसी पे ही देख देख के उसी को अपने रिलेटिव्स को दिखा के इतना खुश हैं. तो मुझे लगता है बेटा तुम यहीं सही हो, तुम क्यों जाके तुम्हें खजुराहो डांस फेस्टिवल और सेरेंडिपिटी में डांस करना है, तुम यहीं अपना जीवन पूरा कर लो. सो इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट येस, आपसे मैं ये चीज़ छुपाऊंगी नहीं कि इट इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग प्रोफेशन लाइक एनी अदर प्रोफेशन. अगेन आई एम नॉट पुटिंग इट अबव एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे चीज़ें उठा लेते हैं. हमारे स्कूल में भी थे कई बच्चे जो पूरे साल पढ़ते नहीं थे और क्लास में टॉप करते थे. उनको ये गॉड गिफ्ट ही थी. फोटोजेनिक मेमोरी होती है किसी का कुछ होता है. आर्टिस्ट में ये चीज़ होती है. मैं चाह कर भी नहीं गा पाती. ऐसा नहीं कि सुर ताल की समझ नहीं, पर आवाज़ नहीं है ना.
किसी बच्चे की आवाज़ इतनी सुंदर होती है कि वो कभी ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है और वो कर देता है. सो बेसिकली इट इज़ जस्ट टैलेंट, प्योर टैलेंट. और जिनमें टैलेंट है उनको हमें एज टीचर्स एंड एज पेरेंट्स भी हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कम होते हैं. अच्छे आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं. बहुत कम होता है. बाकी बनाओ, सब बनाओ. मैं तो कहती हूँ सारी दुनिया रील्स बनाए, सारी दुनिया जो है ये करे, क्योंकि श्री सबसे आसान तरीका प्रभु को प्राप्त करने का म्यूज़िक और डांस है. सच बात है ये. तो उस मोमेंट को जिसको आप जॉय कहते हैं, उस वक्त आप जो फील कर रहे हैं, आई ऑलवेज से दैट यू नो आर्ट फॉर्म्स आर लाइक लव. वी ऑल हैव बीन इन लव एट अ पॉइंट विद अ पर्सन जिसके बारे में हमने किसी को नहीं बता सकते. आप क्रश कह लो, कुछ भी कह लो, हम नहीं बता सकते. पर उसको देख के जो खुशी महसूस होती है, उससे बात करके जो खुशी महसूस होती है, वो खुशी सिर्फ मेरी अपनी है. सेम वेज ये साधना मेरी अपनी है. एंड आई एम द वन हु वॉन्ट्स टू गेट माई गॉड थ्रू दिस. मे बी यू डू नॉट वॉन्ट, यू वॉन्ट टू गेट अ लॉट ऑफ मनी. द अदर पर्सन वॉन्ट्स टू गेट अ लॉट ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम पीपल, कि जैसे ही मैं एंटर करूँ लोग तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा स्वागत करें. तो and there is no right and wrong. There is no right and wrong to it. Unless you are hurting somebody, there is no right and wrong. जैसे कुमी बहन हमेशा कहती है कि डांस में सब कुछ जो है वो सही और गलत नहीं, अच्छा और बुरा होता है. जो आँख को अच्छा लगे वो अच्छा है. Now you see a lot of reels, you like them. Yeah. And that is the reason they are getting so many likes, because वो विजुअली अच्छा लग रहा है. कुछ लोग कम कपड़े पहन के भी डांस कर देंगे, वो भी अच्छा लग रहा है कई लोगों को, क्योंकि वो आपकी नज़र है. And it's absolutely fine as long as it is not hampering my career. एंड हैम्परिंग इन द सेंस, आपको उसको बुलाना है शो में, आप बुला लो प्लीज़, बिकॉज आई एग्जैक्टली नो कि मुझे किस तरह के लोगों के लिए परफॉर्म करना है, कितना परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है. सो आई हैव टू, इफ़ आई कीप सीकिंग वैलिडेशन. कई लोगों को होता है कि मैं कैसी लग रही हूँ व्हेन आई एंटर, मैं ये होना चाहिए. सही है, मुझे लगता है कि भैया यहाँ से भी जाऊँगी तो कुछ सीख के जाऊँ, कुछ पता और क्या हो सकता है. या मे बी आई कैन शेयर माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंसेस विथ यू. शायद उससे किसी को ये समझ में आए, क्योंकि मेरा तो ऐसा हाल हो गया अभी, तो मैं एकदम ऐसे कहा भाई इट्स अ सीरियस प्रोफेशन, समझते क्यों नहीं हो. सो आई कीप टॉकिंग अबाउट दिस वेरी क्लियरली कि आप किसी सपने को लेकर मत आओ कि मैं बस आऊँगी, एक आधा घंटा डांस करूँगी और फिर उसके बाद मुझे पद्मश्री मिल जाएगा. बिग गुरुज जिनको अभी तक अवार्ड्स ही नहीं मिले कभी, और ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं देते, वो दिखाई भी देते, उनका काम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक पूरी यू नो there are applications for it. Lot of people don't even know about that. Exactly. You understand? So it's a serious profession, and जो करना चाहता है खुद ही चूज करके लगा रहता है. We're just there to guide them. Thank you. I guess it was the best of the answers I have ever listened to, and क्योंकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है ना. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि नहीं आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आई एम हेयर टू गाइड. क्योंकि बहुत लोग ऐसे इन्फ्लुएंशियल तरीके से आपको शायद अपने ही पाथ पे चलाना चाहते हैं. लाइक संतोष सर ऑलवेज सेड कि मेरा काम सिखाना, एक्सप्लोर करना तुम्हारा है. Absolutely. इट्स योर जर्नी, इट्स योर इंडिविजुअल जर्नी. तुम कैसे लेके जा रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है. That's why I absolutely adore him, because coming from Kumi Ben says that, Kumi Ben always says that मुझे अपने क्लोन्स नहीं तैयार करने. Exactly. आपको जो एक्सप्लोर करना है वो करो. सेम गोज फॉर संतोष गुरुजी और शशि गुरुजी. ऑल ऑफ देम दे आर लाइक लर्न एंड एक्सप्लोर एंड ग्रो. उन्होंने हमेशा यही बोला कि जैसे तुम स्टेज पे हो, साध्या नहीं दिखना चाहिए, Absolutely. श्री स्वाति दिखना चाहिए. तो उन्होंने हमेशा इस चीज़ पे हमेशा फोकस किया कि यू क्रिएट योर ओन थिंग्स, यू क्रिएट योर ओन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डांस में. तो वी हैड अ नाइस जर्नी विद हिम. ओके, तो अभी हमने काफ़ी एजुकेशन फील्ड में क्या चल रहा है ये सब बातें की, हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स फील्ड में क्या हो रहा है वो भी बात करी. अभी हम बात करते हैं ज़रा कुछ लाइटर मोमेंट्स की. तो कुछ ऐसे बताओ, टेल मी एनी ऑफ योर फेवरेट मोमेंट जो कोई डांस प्रोडक्शन बनाते टाइम या आई वुड से एनी बैक स्टेज स्टोरी. कुछ फ़नी ऐसा रहा हो जो स्टिल डेट यू रिमेंबर, रिहर्सल कर रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो और एक अचानक से कुछ अजीब सा इंसिडेंट हो गया दैट रिमेन विद यू. सो यू वांट टू नो अ फनी इंसिडेंट? फनी इंसिडेंट. फनी तो बहुत सारे हुए हैं वैसे तो, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर इन ग्रुप एंड व्हाटएवर, बट द वन विच इज़ एच्ड इन माई मेमोरी इज़ माई परफॉर्मेंस फॉर जयपुर दूरदर्शन.
तो जयपुर दूरदर्शन वालों ने मुझे बुलाया था फॉर माई सोलो परफॉर्मेंस एंड आई वॉज इन माई टीन्स ओनली एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. तो हम तैयार होकर पहुँच गए थे. माई फादर ऑलवेज ट्रैवल्ड विथ मी बिकॉज आई हैव अ यंगर सिस्टर प्रज्ञा. तो माई मदर यूज टू स्टे बैक एट होम एंड शी यूज टू गो टू स्कूल एंड ऑल्सो शी यूज लुक एट दैट एंड माई grandparents were there. So my father used to go. So my father is somebody who doesn't belong to dance field, पर वो मुझे पूरा तैयार व्यार करने में हेल्प करना, ये वो सब कुछ था. So it was a 25-minute slot which was given to me for a solo Kathak performance. And 19 and a half minutes के आसपास जो है I was doing चक्कर 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 चक्कर. तो मेरी चोटी जो है वो खुल के, और जैसे क्योंकि आप नीचे से भी उसको बांधते हैं तो इसे खुल के, और जैसे हनुमान जी की पूंछ होती है उस तरीके से वो मेरे कुर्ते के पीछे आ गई थी. एंड देन so that is one of the things which is, and I'm still, you know, when my students अभी भी कोई परफॉर्म में तुम 20 चक्कर लेके दिखाओ मुझे, तुम्हारे बाल, तुम्हारा जूड़ा, बिकॉज वो मुझे एक ऐसा, I mean it is, I'm now I laugh at it, but at that moment for a youngster it was so traumatic. But obviously वो जो है उन्होंने उससे पहले वाला जो टुकड़ा था उन्होंने पूछा मेरे गुरुजी से, और उन्होंने वो सम पे उसको काट के उसको ख़त्म कर दिया था. एंड देन आई डोंट रिमेंबर वेदर दे री रिकॉर्डेड द रेस्ट ऑफ 5 minutes और वॉट, आई डोंट रिमेंबर दैट नाउ. बट दैट इज़, आई थिंक इट इज़ सो, इट्स लाइक अ ट्रॉमेटिक मोमेंट फॉर मी नाउ, फनी ऑल्सो. बट अब मैं मेरे बच्चों का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि बाल जो हैं, बाल और टीका और ये और वो, बिकॉज यू नो इट कैन जस्ट, एंड नाउ डेज सो मच ऑफ, और वो उस टाइम रिकॉर्डिंग था तो वो रिकॉर्डिंग में रह जाती है. जब व्हेन यू क्लिक अ फोटोग्राफ, व्हेन यू मेक अ वीडियो, वो चीज़ें रह जाती है. सो आई एम सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस. दिस इज़ द फनीएस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड विद मी. अदर देन दैट यस, बैक स्टेज मस्ती तो खैर बहुत कुछ या. तो ओके, सो सिंस वी आर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, वी ऑल्सो नो, एक तो होता है फाइनल प्रोडक्ट जो दिख रहा होता है, प्रोडक्शन या डांस पीस ऑन स्टेज दिख रहा होता है, वो बहुत वाह होता है. एक होता है उसका प्रोसेस. लाइक आई फील प्रोसेस सबसे बेस्ट होता है जो आपके साथ हमेशा रह जाता है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है. दैट इज़ हाउ द पीस, द प्रोडक्शन हैज़ बीन मेड. तो any of the process you would like to share with us of any of your pieces or production? I think when I got married and came to Delhi, उस टाइम मुझे साहित्य कला परिषद की तरफ से एक वर्कशॉप मिली थी. उनकी कुछ ईयरली वर्कशॉप्स होती हैं समर में, एंड आई वाज द डायरेक्टर फॉर दैट 1 month फॉर सम वर्कशॉप विच वाज ऑफ 25 days इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और उसका जो फाइनल परफॉर्मेंस है वो कमानी में होना था. सो उस टाइम आई जस्ट गॉट मैरिड एंड आई कम टू दिल्ली. तो मुझे लगा कि मुझे ना कुछ, बिकॉज कथक पे सब कुछ हर कोई कुछ कुछ करता रहता है. तो उस टाइम मैंने जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2006-07, उस टाइम पे मैंने धर्मवीर भारती जी की किताबें पढ़ रही थी मैं उस वक्त, और आई केम अक्रॉस कनुप्रिया, जो उनकी बहुत ही नोन किताब है, जो पोइट्री है उनकी. उसमें एक कविता है, तुम मेरे कौन हो कनु, एंड इट इज़ अबाउट, I mean, I would say that my relation with Shri Krishna. So it's like the authors or the Sakhis or Radhas or whosoever. Uska relationship with Krishna, how the transition has happened. So I think that was something where I realized for the first time that मुझे depth का idea तो था classical dance के, कि भाई कितना डीप होता है, क्योंकि संचारी में जाने के लिए आपको कहाँ तक डूबना पड़ता है, एक आइडिया तो था. बट दैट वाज समथिंग वेयर इट वाज नॉट जस्ट थरली इंजॉइंग, बट देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज कोरियोग्राफिंग इट, बिकॉज उन वर्कशॉप्स में जो बच्चे आते हैं वो ट्रेंड डांसर्स ज़्यादातर नहीं होते हैं, तो वो स्क्रैच से शुरू कर रहे होते हैं. तो उनके साथ में काम करना, प्लस कुछ एक ट्रेंड भी होते हैं, एंड उसकी रिकॉर्डिंग, उसका ये सारा कुछ, एंड यू नो दैट इज़ द टाइम दैट आई रियलाइज दैट इट इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रांजिशन ऑफ वर्ड्स. और जैसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जिसको कहते हैं, उसे समझना, और उम्र का जो पड़ाव है उसको समझना हर जगह पर. तो यू नो दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अ ब्यूटिफुल इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी. मैंने शिरडी साईं बाबा टेम्पल में 3 बार परफॉर्म किया है. सो व्हेन आई परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज अ यंग यू नो कॉलेज गोइंग गर्ल, एंड आई हैड परफॉर्म गिवन माई सोलो इन फ्रंट ऑफ बाबा इन द मंदिर, समाधि मंदिर. The second time when I went, I was married and then I went with Ankush. So the Pandit ji told me, कहते हैं कि तुम्हारे भाव में चेंज आ गया है, और इतना प्रेम तुम बाबा से करती हो तो तुम अपने पति से कितना प्रेम करती होगी. He could see through that because I had grown from a girl to a woman.
And then the next time I performed, I already had a son. And the same Guruji, because वहाँ के जो पंडित हैं वो जो हैं उस टाइम में उन्होंने फिर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ और अच्छा हुआ है. So you know, this is kind of thing that while doing Kanupriya with those children I understood, because for them it was just movement and expression, and for me it was so mind boggling and eye opening, क्योंकि जब वो अंत में वो लाइन आती है कि मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं हूँ, वो वाला जो भावार्थ आता है, to understand that and you say oh my god, this is like so beautiful. And when you are listening to it and when you are talking about it, it is just a second where you just realize that oh my god, this is so beautiful and this is the crux of life. Right. कि हम जो सब कुछ चीज़ें बाहर ढूंढ रहे हैं वो हम ऑलरेडी हैं, विच यू ऑलवेज रीड. आई मीन हम तो अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़े हैं, कॉन्वेंट में पढ़े हैं, तो वहाँ पे ये जो इतने बड़े बड़े हिंदी स्कूलों में भी होता है वो आपको बहुत मोटिवेशनल कोट्स हर जगह लिखे होते हैं. देन यू रीड पोएट्री एंड ऑल ऑफ दिस इज़ देयर. बट आई थिंक दैट वॉज द मोमेंट when I started going more into the literary side of dance for this reason, and not just dance but literature. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं उसको भाव को समझूं तो सही व्यक्त करने से पहले. बिल्कुल. एंड अलग अलग तरह की पोइट्री है, लिटरेचर है, ये है, भारतीय है, पाश्चात्य है, जो भी है, रीजनल है, उनसे आपकी वो चीज़ जो है. सो आई थिंक दैट इज़ वन मेमोरी दैट आई स्टिल, एंड वेन एवर आई लिसन टू दैट और वेन एवर आई रीड इट, इट इज़ स्टिल द सेम फीलिंग दैट कम्स. So nice. So basically, and like after listening to you, अभी आपने काफ़ी जगह mention किया that performing arts में रहते रहते you focused a lot on the literature as well. So was it, I'm sure it must have been the literature must have given the strength to your pieces, some concepts to your pieces. It must have obviously influenced your dance. Absolutely. हमें इनवाइट किया गया था when I was in Kunskap School, and हमें we were very fortunate to be invited by श्री मुजफ्फर अली जी. So हम रूमी की डेथ एनिवर्सरी पे जो है उन्होंने 2000 आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 18 में हमें इनवाइट किया था. ग्वाल पहाड़ी में जो उनका घर है वहाँ पे परफॉर्मेंस थी. एंड दैट वाज द टाइम दैट आई वाज इंट्रोड्यूस टू रूमी. एक तो इतना ज़्यादा टैलेंटेड पोएट्स और राइटर्स और सब हैं कि आप सारा कुछ अगर अनटिल अनलेस फुल टाइम वही कर रहे हो आप नहीं पढ़ पाते हो. तो उस वक्त मैंने रूमी को पहली बार पढ़ा था 2018 में. और अगेन उनका जो पीस था, क्योंकि अंग्रेज़ी में हम लोगों ने उसको उठाया था, क्लासिकल म्यूज़िक के साथ हमने उसको अटैच किया था. एंड उससे नॉट जस्ट द डेप्थ और द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम बट द अंडरस्टैंडिंग एंड द application of it made the students also feel better as dancers, because they felt कि एक तो because I think उसमें एक या दो तो स्वीडिश लड़कियाँ थी और बाकी इंडियन थी. तो वो आप जिस भाषा को समझते हैं, शब्दों की यही ताकत होती है कि जिस भाषा को आप समझते हैं उससे इमोट करना. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू somebody and somebody talks about Shri Krishna or Shri Ram or Shiva, for me it is easy to connect. I will never call Ganesh ji an elephant-headed god. Because for me it's like Shri Ganesh. So for me to explain that is or to understand that मेरे को कोई परेशानी नहीं होती है. तो मुझे वही लगा कि वहाँ के उनके जो लोग थे उनमें भी कई लोग ऐसे थे जो फॉरेनर्स थे. तो लिटरेचर आपको बहुत मदद करता है. आपके नृत्य में लोग कहते हैं दैट यू नो एक्सप्रेशंस वो चीज़ें कह देते हैं जो शब्द नहीं कह पाते. आई डिसअग्री, बिकॉज हर एक की अपनी वैल्यू है. अब मेरे एक्सप्रेशन को आप गलत तरह से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं. मे बी आई एम हर्ट एंड यू फील आई एम एंग्री. देर आर टू एंड इट इज़ डिफरेंट. पीपल से व्हेन यू आर हर्ट यू आर एंग्री. नो, you can be hurt and sad, you can be hurt and angry, you can be hurt and whatever, revengeful, jealous. तो कृपया अपनी शब्दावली को समझिए, और इसमें लिटरेचर बहुत हेल्प करता है. क्योंकि जैसे मैंने कनुप्रिया का कहा आपको, या अभी मैंने रूमी का कहा आपको, हमने उनकी एक कविता उठाई थी सोल करके. तो उसमें यही था कि सोल की जर्नी थी, लेकिन वो एक 16 साल की या 17 साल की जो लड़की मेरे साथ वहाँ परफॉर्म कर रही है, उसमें और मेरे सोच में और मेरे समझने में उन शब्दों को बहुत डिफरेंस है. तो वही चीज़ है कि लिटरेचर आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है, और जो आपने आज कोरियोग्राफ किया है वो आप जब आज से 5 साल बाद री-कोरियोग्राफ करेंगे, अगर उसमें शब्दावली है कोई, उसके मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे.
बिल्कुल बिकॉज आप ग्रो कर चुके होंगे, आपकी वो कैब ग्रो कर चुकी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो कर चुकी होगी बिकॉज ऑफ योर एक्सप्रेशंस. सो लिटरेचर बहुत हेल्प करता है. पढ़ना तो अति आवश्यक है. और मैं ये नहीं कहती कि आप नाट्यशास्त्र उठा के पढ़िए. आप पढ़िए किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं. और मैंने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं किताब पढ़ रही थी, सीता के ऊपर थी वो, अब मुझे एकदम से नाम नहीं याद आएगा उसका. तो उसमें सीता की जो कहानी है वो बहुत अलग तरीके से कही गई है. एंड मैं उसको क्वेश्चन भी नहीं कर रही, लेकिन उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैंने अंडरलाइन कर ली है. तो सेम वेज यू रीड अ मैगजीन, यू रीड एनीथिंग, यू रीड गुड स्टफ, यू रीड एनीथिंग. इवन इफ यू रीड बैड स्टफ, आपको पता लग जाता है कि कचरा है और ये अच्छा है, बिकॉज आप इतना पढ़ रहे होते हो. तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लिटरेचर बहुत ज़रूरी है. और ऑडियंस से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर आप अपने दड़बे में रहकर अपनी 4 भजन और 4 ठुमरी और 4 जो पीसेज हैं उसके अंदर अपना जीवन अगर व्यतीत करते हैं तो फिर आप की रेलेवेंस नहीं रह जाएगी. ट्रू. ऑडियंस के साथ कनेक्शन नहीं रह जाएगा. धीरे धीरे करके आई फील आपके वो पीसेस फेड आउट होने लग जाएंगे. यू हैव टू वेरी इंटेलिजेंटली प्लेस द ट्रेडिशनल स्टफ along with the context of today's time. I am not asking you to malign the originality. I am not asking you to compromise on anything. But please understand that there is a language that the other generation understands. Correct. Make it more connecting. Yes. It's easy to say कि इनको समझ नहीं आता है. I always say if you are a teacher, if you are a performer, ये आपका जॉब है to समझाना. बिल्कुल. समझाने का काम आपका है. उसको समझ नहीं आ रहा है अर्थात आप उसकी भाषा नहीं पकड़ पा रहे हैं. बिल्कुल. वही वाली चीज़ है कि जब आप चाइनीज़ बंदे को जाके और हरियाणवी में बात कर रहे हैं, उसको समझ आएगा? नहीं आएगा. सो उसको कॉन्टेक्स्ट दीजिए, उसका इंटरेस्ट देखिए, एट व्हाट लेवल उसका इंटरेस्ट है. शायद उसका इंटरेस्ट ना हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. बट इफ यू हैव एन ऑडियंस, ट्राई एंड कनेक्ट इट with things which are important for them, keeping the authenticity of your work. Right. Correct. Very well said. In short, हम ये बोलते रहते हैं, हम भी बहुत बोलते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं, वी टेल देम कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको नहीं छोड़नी है. हमारे टीचर ने भी हमको ये बोला था कि आप ये करते रहो, बट डोंट जस्ट थिंक कि डांस है, डांस तो ऐसे ही हो जाएगा. नहीं, आई फील कि आपके डांस की जर्नी बहुत शॉर्ट लिव्ड रहेगी अगर आपके साथ आपकी पढ़ाई अटैच नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं करी है या आप आगे नहीं पढ़ रहे हैं. लाइक एज यू सेड, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप पढ़ो उसको. कहीं ना कहीं उसके कंसेप्ट आप अपने डांस में अप्लाई कर पाओगे. यू कैन कम अप विद सम वेरी फ्रेश एंड न्यू क्रिएशंस, समथिंग टोटली लाइक द कंसेप्ट दैट वी टॉक अबाउट. कुछ अलग आप क्रिएट कर पाओगे. सो या वेरी वेल सेड. और एक डर भी निकल जाता है स्वाति की. यस. जैसे मुझे कई बार होता है, जब भी मैं जॉब छोड़ती हूँ, इफ समबडी क्वेश्चंस मी, कहती हूँ यार मैं तो किंडरगार्टन में जाके टीचर भी बन जाऊंगी, मैंने मॉन्टेसरी ट्रेनिंग भी थोड़ी सी कर रखी है, या मैं स्टोरी टेलर बन जाऊंगी, या मैं कुछ कर लूँगी. आई मीन आई विल सर्वाइव. फॉर मी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन स्टेज एंड डांस, एंड आई डू दैट वेरी लेस नाउ. सो वो कॉन्फिडेंस लेवल और वो जो खुशी होती है ना, वो आपकी स्किल सेट से आती है आपको. कि अगर आप मुझे कहीं पर कुछ भी काम दोगे, मैं कई बार कहती हूँ, मुझे कहीं पर भी MNC में भी कुछ फ्रंट डेस्क की भी मिल जाएगी तो मैं अच्छे से है ना एकदम रिसेप्शनिस्ट भी बड़ी अच्छी बन जाऊंगी मैं. बिकॉज आई नो हाउ टू कम्युनिकेट इन द प्रोफेशनल वे. इट इज़ नॉट बीइंग लाइक यू नो फ्रेंडली एंड टॉकिंग गिबरिश और टॉकिंग एनीथिंग. सो बेसिकली वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका पढ़ाई की वजह से बढ़ता है, क्योंकि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, आपके पास में कंटेंट है कि आपको बोलना क्या है. आप अपने आप को आई थिंक कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि आप यू नो इट, यू नो द थिंग्स. वेरी वेल सेड. एंड बेस्ट, डर नहीं है, डर निकल जाता है. अगर आपके साथ आपकी पढ़ाई है, आपका डर नहीं है, डर निकल जाता है. नाइस. ओके, सो थोड़ा सा आई वुड नॉट से ट्रिकी क्वेश्चन, बट या हमने ऐसे लाइट मोमेंट्स, फनी मोमेंट्स की बात की, सारे एजुकेशन पैटर्न की बात करी. इफ़ आई मे आस्क यू अबाउट हाउ यू फील अबाउट द ग्रे एरिया ऑफ योर फील्ड, एनीथिंग दैट यू फील कि ये थोड़ा सा दिस इज समथिंग विच कुड हैव बीन अ लिटिल राइट, द ग्रे एरिया अकॉर्डिंग टू यू ऑफ दिस फील्ड. देयर आर नो ग्रेज इन माई लाइफ स्वाति. इट्स आइदर ब्लैक और वाइट. मेरा बहुत मतलब फंडा जो है, मुझे बहुत लोगों ने इस चीज़ के लिए काउंसिल करने की कोशिश की है दैट देयर इज़ अ ग्रे एरिया. मेरे को वो ग्रे मैटर ही नहीं समझ आता, मेरा ब्लैक होता है या वाइट होता है. आई थिंक इट इज़ समथिंग वेयर दिस होल ट्रेडिशन
or this whole practice of A, validation, B, competition has come in. Yeah. क्योंकि बहुत मैच्योरिटी चाहिए आपको ये समझने के लिए कि जो मैं कर सकती हूँ वो कोई और नहीं कर सकता. एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट, देन द लेवल ऑफ कंपटीशन जो होता है वो हेल्दी हो जाता है. तो ये जो pitching people against each other and kind of trying to find the best in it and kind of, I mean, I'm not talking about TV shows and all, उनका काम है ये करना, but I'm talking about our field. अगर किसी ने कुछ नया आप ट्राई किया है, तो जैसे अगर आपने आज ये पॉडकास्ट किया है और मुझे आपकी कोई बात पसंद नहीं आई है, तो मैं आपको पॉडकास्ट देखने के बाद मैं आपको फ़ोन करके आपसे बात कर लूँगी. आई विल नेवर पोस्ट इट ऑन फेसबुक सेइंग कि स्वाति ने ये कहा और फिर पारुल ने वो कहा. The kind of support that we should be giving to each other as a fraternity, जो पहले था. और पहले ये नहीं, क्योंकि हम सब गुरुओं के पास सीखे, तो हमें पता है बैक जब हम अपने केंद्र में होते थे, अपने जो है गुरु के साथ होते थे, तो वी यूज टू टॉक अबाउट अदर गुरुज ऑल्सो कि भाई ये नहीं हो रहा, वो तो ऐसा कर रही है, ऐसा कर रहा है. लेकिन जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं तो उनका प्यार बहुत जेन्युइन होता था. हम भी उनसे सीखने जाते थे, वो भी हमसे सीखने आते थे. डिविजन्स नहीं थे, कंपटीशन. तो कंपटीशन और वैलिडेशन जो है ये दो चीज़ें हैं. क्योंकि आई डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम एनीबडी बिकॉज आई हैव पुट इन माई सोल एंड हार्ड वर्क इन दिस फॉर्म. मैं आज अपना जीवन के 25-30 साल देने के बाद, 40 साल देने के बाद, 50 साल देने के बाद, 60-70 साल देने के बाद में मुझे आप नहीं बताएंगे कि मैंने सही किया है या गलत किया है. मेरा दिल बता रहा है मुझे कि वो मैंने सही किया है या नहीं किया है. माई सोल इज़ टेलिंग मी ऑलरेडी, माई कॉन्शियस इज़ टेलिंग मी. और दूसरी चीज़ ये है, कम्पीट अगर आप करते हैं तो हेल्दी कॉम्पिटिशन रखिए. बिल्कुल. कि मैं अगर तुम्हारा जो है, अगर ओडीसी में हो तुम और तुम्हारा ताहिया टेढ़ा है, तो मुझे तुम्हें बोलना पड़ेगा. मैं कहूँ इसकी फोटो में खराबी आनी चाहिए. लुक, शी डजंट हैव द बेसिक सेंस टू इवन टाई हर ताहिया. लाइक सो अभी जैसे कि आपने अभी जैसे आपने बोला उससे कि हम ये आपस में बात कर लेंगे, या यू विल नॉट स्टार्ट टू गो आउट एंड पुट इट ऑन सोशल मीडिया. वेरी वेल सेड, बिकॉज आई ऑल्सो सी दिस कि सोशल मीडिया को अभी एक मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है वो आपकी लाइफ में, कि जो डिस्कशन या कुछ भी ये माइन्यूट इश्यूज़ भी जो आप किसी से बात करके भी समेट सकते हो, निपटा सकते हो, वो यू आर नॉट टॉकिंग टू द पर्सन बट यू आर डायरेक्टली गोइंग देयर, टेलिंग द वर्ल्ड डायरेक्टली. आई फील कि देर आर टाइम्स कुछ चीज़ें हो जाती है, यू डोंट नो सामने वाले का इंटेंशन कैसा था, उस टाइम पे क्या हुआ, किसकी सिचुएशन कैसी थी, वो सर्कमस्टेंस क्या था. मे बी वो बहुत डिफरेंट हो सकता है. तो like you have said it and it's so true. We have stopped talking, we have stopped we have stopped communicating. We are only talking, we are not listening, we're not communicating, we're just talking. अभी मैं एक किसी इवेंट में गई थी, वहाँ पर किसी ने बोला था, I don't remember his name also, he said that the people who have a lot of content, they speak very less. थोथा चना बाजे घना. तो जिसने अपने जीवन में वो साधना के रूप में नहीं किया है, वो इंसान कभी भी दूसरे की तारीफ़ नहीं कर पाएगा. मुझे मेरे जो कलीग्स हैं, कई कलीग्स हैं, वो कहते हैं अरे पारुल मैम तो सबकी पकड़ पकड़ के तारीफ़ ही करती रहती है. पारुल मैम किसी को भी कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्स देती रहती है. बिकॉज फॉर मी आई हैव लिव्ड अ लाइफ वेर आई अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हार्ड वर्क एंड टॉयल दैट आई हैव कम थ्रू. एंड इट्स नॉट दैट मैं वो दुखी वाले साइड से नहीं कह रही हूँ, पर मैं अपनी साधना के रूप में कह रही हूँ. जब आप मुझे आके कहते हैं कि दीदी आपका मैंने वो देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इट्स नॉट दैट मुझे आपकी वैलिडेशन की ज़रूरत है, बट देर इज़ नो हार्म फॉर यू टू मेक मी फील गुड एंड देर इज़ नो हार्म कि मैं फील गुड करूँ किसी और के कहने पर. तो इफ़ यू कैन नॉट से एनीथिंग गुड देन डोंट से एनीथिंग एट ऑल. तो मुझे ये लगता है कि स्पेशली सोशल मीडिया पे जो लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं, अब जैसे बहुत से लोग ये ज्ञान देते हैं कि जो लोग थ्योरी करते हैं वो थ्योरी डांसर्स होते हैं, प्रैक्टिकल उनको समझ ही नहीं आता है. अच्छा होते होंगे, मैं आपको ये नहीं कह रही आप गलत हैं. देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स आई हैव सीन हु कैन नॉट सिंग बट PhD कर रखी है उन्होंने. डांसर्स जिन्होंने डांस नहीं किया है वो PhD कर रखी है. पर एक चीज़ समझिए, उनकी अपनी जर्नी रही है, उनका अपना काम रहा है, उनकी अपनी क्वालिफिकेशन रही है, और उस वजह से वो जहाँ है वहाँ है. किसी और ने सेलेक्ट किया कि वो स्टेज पर रहेगा. तो वो जो थ्योरी डांसर जिसको आप कह रहे हैं, उसके पास शायद उतनी पेपर कटिंग्स, उतनी नेटवर्किंग, उतने परफॉर्मेंसेस नहीं थे. जो जॉय ऑफ परफॉर्मेंस
क्योंकि मैंने जब परफॉर्म करना कम किया और फिर बहुत कम किया, उसका रीज़न क्या था, मैं थक गई थी. इट इज़ ऑलवेज द सेम. You perform, then people like it, they click your photographs, they come, they talk to you, they're like, oh, you were phenomenal or whatever. ये नहीं अच्छा लगा, वो नहीं अच्छा लगा, ये जो भी बातें होती है. फिर अगली बार फिर वही. And some people just live on that, they thrive on that. And I was like, नहीं यार ये तो मैं बोर हो गया यार, अब कुछ और करते हैं. अब बच्चों को सिखाते हैं, अब स्कूल में सिखाते हैं, अब यूनिवर्सिटी जाते हैं, अब ये करते हैं, अब टॉक करते हैं, अब पढ़ाई करते हैं, अब किताब लिखते हैं, अब प्रूफ रीडिंग करते हैं, अब एडिटिंग करते हैं, अब पॉडकास्ट में जाते हैं. तो द थिंग इज दैट people who do not know and do not respect the fact that every journey has a lot of hard work, तो आप compete नहीं करेंगे. True. I guess it has become very easy nowadays to demean somebody. It is not easy. This is what आपको ये लगता है कि the moment में trend ये है कि मैं demean कर दूँ. Trend. मेरे आसपास के भी मुझे कई लोग कहते हैं that you completely shut off and you don't talk to people. You cut them off completely. मैंने कहा क्योंकि वो बेअदब है, उसकी नज़र में बेअदबी है. ये नहीं कह रही कि मेरे को इज्जत दो तुम. उस मुझे सामने दिख रहा है. दे ऑलवेज से ना दैट व्हेन यू डेट समबडी यू सी हाउ ही और शी ट्रीट्स द वेटर इन अ रेस्टोरेंट. दैट इज़ द रीज़न. हमारी जो पुरानी बात है वो बहुत क्लियर है कि, और मेरी नानी ये चीज़ कहती थी, जिस चीज़ को मैंने बहुत स्ट्रांगली अपने दिमाग में रखा हुआ है, कि जब आप अपनी साथल कहते हैं राजस्थान में जांघ को, जब आप अपनी जांघ उघाड़ते हैं ना तो नंगे आप कहलाते हैं. So if you bloody have a problem, you sort it at your own level with the person you have a problem with. Because the moment you put it out to public. True. There'll be people on your side and other people's side, और आप अपनी इज्जत तो गंवा ही देंगे. तो अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते, आप किसी की पोस्ट को लाइक नहीं कर सकते, किसी की परफॉर्मेंस आपको नहीं पसंद आई, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो मत बोलिए. और अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, तो मैं आके बोलूँगी कि स्वाति बच्चे तुमने उस दिन जो किया था ना, मेरा मानना है, मतलब यू टेक इट द वे. आई एम श्योर संतोष गुरुजी डज द सेम. दैट्स द फीडबैक व्हिच इज इंपॉर्टेंट. वो शो में खड़े होकर तो मैं नहीं कहेंगे कि क्या कर दिया. बिल्कुल. द मोमेंट somebody does that, you're like, darling, you are finished and I am out of your vicinity. At least I'm not going to deal with you. So okay, so tell us more about you being an author, and when was your first book was published? So right, I'm still working on my books, Okay. per se, but I have co-authored a book with my son, and so interesting. So that's something, but that's more onto the fictional side. And वो अब रिलीज़ होने वाली है. एंड ज़्यादा मेरा जो काम रहा है वो एडिटिंग में रहा है अभी. उसके अलावा रिसर्च पेपर्स जो हैं वो काफ़ी पब्लिश किए हैं. सो फॉर मी इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द होल आइडिया ऑफ प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग एंड द बेसिक स्ट्रक्चर, बिकॉज राइटिंग एज एन ऑथर, आई राइट फॉर मैगजीन्स एंड आई राइट फॉर न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, वो तो चलता ही रहता है, बट वो एक बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं और एक थीम होता है. एंड व्हेन यू वांट टू कम आउट विद अ बुक, देन द नंबर ऑफ वर्ड्स आर मच मोर. सो येस, आई एम वर्किंग ऑन अ फ्यू बुक्स साइमल्टेनियसली, लेकिन प्राइमरली अभी जो मेरा काम रहा है वो एडिटिंग. एंड हमने एक लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस की थी. आई वॉज अ कन्वीनर फॉर दैट कॉन्फ्रेंस, एंड इट वॉज एन इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉन्फ्रेंस वेयर वी केम आउट विद अ बुक बाय द नेम ऑफ अन्वेषण. एंड it had around 35 papers and 10 performing arts abstracts. So this is what I've been like doing for last, I would say, 5 years. तो हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपकी फर्स्ट बुक रिलीज होगी? Well, very soon. Kind of working on quite, वही हो जाता है, बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं हम. एंड यू नो स्टोरीज पब्लिश होना और जो होता है आर्टिकल्स पब्लिश होना एंड बुक पब्लिश होना में बहुत फ़र्क होता है. सो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. बट येस, वेरी सून, प्रॉब्ली द नेक्स्ट टाइम वी मीट आई विल गिव यू माई बुक. यस, आई एम लाइक विल लुक फॉरवर्ड टू इट. ऐसे पता नहीं अभी पूछना चाहिए या नहीं, बिकॉज अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है, रिलीज नहीं हुई है. वुड यू लाइक टू गिव अस अ लिटिल ब्रीफ या जस्ट आइडिया कि व्हाट इट इज अबाउट? जैसे बिल्कुल ऊपर. व्हाट एल्स? इट्स सो ऑब्वियस, स्वाति. डांस. It has to be dance and it has to be music. The one I've done with Athar, my son, is music. Okay. And primarily all forms of performing arts is what I'm looking at. I'm planning to come out with a series also
उसका भी काम काफ़ी ख़त्म हो चुका है, where I'm giving an option to young authors to write about performing arts, and I will be editing it because there's a certain way a book goes out. There's a Right. language for books. Right. So we're coming out with that series also, and उसका भी काफ़ी काम हो चुका है, तो very soon things will like come up. Very nice, and we wish you all the best for that. Thank you. और जब रिलीज होगा तो do let us know. Absolutely, you'll be invited for the release ceremony. So nice. Okay, so now we are like about to finish it, and we have already we had a very good time. Let me just say this. Same here. So many new thoughts that you have shared. That पीछे से we know a lot of things, but there are times we want somebody to put it in words, in front of you. वो आपके पास रह जाता है. So thank you so much. And before leaving, anything you would like to give our audience, your food for thought? My food for thought, basically, just enjoy whatever you choose. Enjoy, and it's in every profession. And just now, because we're talking about performing arts, so performing arts के बारे में ज़्यादा कहा जाता है that there are a lot of bad people, and there is this, and there is politics, and there is that, but like water, you can always find your way through. जब एक नदी बहती है तो बहुत से ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो नदी ये थोड़ी कहती है मेरे सामने अब जी एक पहाड़ आ गया तो मैं रुक गई. तो फिर वो अपना रास्ता बदलती है, और वो अपना कंटेंट नहीं बदलती. वो नदी से जो है वो ऐसा नहीं है कि वो पानी से वो आग नहीं बन गई है या वो हवा नहीं हो गई है. सो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट माई हैप्पीनेस इज़ इन माई हैंड्स, nobody else's hands. And if I'm a performing artist, and if I have chosen to be a performing artist, I'm a blessed one, because everybody doesn't get that choice. मेरे साथ में कई लोग हैं जिन्होंने फैमिली से इतना वो जो है उनकी अगेंस्ट थी फैमिली, उस तरफ से उन्होंने इतना ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम सहा है. जैसे हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारी फैमिली ने हमको सपोर्ट किया. माई हस्बैंड सपोर्ट्स, माई चाइल्ड सपोर्ट्स, माई फैमिली इज सपोर्टेड. सो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ जो है वो आपके अच्छे के लिए होती है, और आपको अगर किसी चीज़ से परेशानी है, और एक चीज़ है कि आपका दिल जो है वो आपको कभी गलत राह नहीं दिखाता. यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट, जिसको हम इंस्टिंक्ट कहते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट you believe in your instinct. If there's a person you don't like, cut off. बाद में देखी जाएगी कि उससे फ़ायदा नुकसान ये वो. इतना अगर हम मैथमेटिक्स करने लग जाते हैं तो वो व्यापार बन जाता है, फिर वो कला नहीं रह जाती. मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेम के अंदर आप बहुत ज़्यादा जब कैलकुलेशंस करते हैं तो फिर वो व्यापार हो जाता है. यू डोंट डू दैट ना. द पर्सन यू आर मैरिंग, you probably can do vyapar there, but when you're falling in love, you don't do that. You just fall in love. So you've fallen in love with your profession, and you enjoy being within that performing arts profession in whatever capacity. So your happiness is in your hands. You have to upskill yourself. आपको अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी. बिल्कुल. As I said, I'm a dozen artist. आप क्या लेके आ रहे हो टेबल पे? And the most important thing is don't ask for validations. Do give in your best. क्योंकि एक परफॉर्मेंस अगर मैं खाली अपने घर में करके भी खुश फील करती हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, rather than compromising a lot of my ethics or my understanding. And when I say compromising, I mean compromising. I don't mean adjusting. क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो हम एडजस्ट करते हैं. बिल्कुल. हम अपस्किल करते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आपको पता है नहीं करना. यार मुझे नहीं करना, फिर भी आप कर रहे हो. तो आप उसको अगर एक प्रोफेशन को एक अच्छे एथिकल तरीके से करते हो, आपका इंटेंट सही है, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी हैप्पी. एंड थिंग्स टेक टाइम. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए. माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. सो एवरीथिंग हैज़ अ टाइम, but you enjoy that journey. Completely enjoy it. And it's a beautiful profession. I always tell that if you have been chosen by that profession, nothing better. आपका दिमाग ठीक रहेगा, आपका शरीर ठीक रहेगा, आपके इमोशंस ठीक रहेंगे, आपके रिलेशनशिप ठीक रहेंगे, अगर आपकी इंटेंट ठीक है. अगर इंटेंट में गड़बड़ है तो फिर सब कुछ हिल जाएगा. So beautifully said. So with this, thank you so much, ma'am. Thank you so much for coming in here and sharing your journey and your thoughts. It has been really wonderful.
And with that, we have a small gift for you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much for coming Thank in. you. It was a pleasure. It was a pleasure, Swati and Shri both. Same here. Thank you Thank so you. much.